Hello everyone. So today I am back with a chemistry video where I am going to teach quantum numbers. So quantum numbers, what are quantum numbers and why are they used? Uh, Quantum numbers are basically like the address for an atom. So like when I write my address first, and also we should know that the we can't always say that the electron is present here, because electrons are moving very fast and uh, they are always in a constant motion. So when I say कि suppose एक atom लिया मैंने, and we can say that suppose मैंने एक atom लिया and I saw that the electron is here with some experiment. I saw the electron is here and I'm telling you it's here, तब तक वो किधर और चला गया रहेगा. So it is not staying in one position for even like वो हर एक second millisecond में अपना position सब change करता है. So we also have a law which says that you can't know the momentum and the position of the electron at the same time. Momentum में तो m भी होता है, mass is constant, so velocity changes. So its velocity and position can't be known at the same time. मतलब अगर तुमने पता किया कि इसका वेलोसिटी क्या है तो तुम उसका पोजीशन नहीं बता सकते. देयर इज़ अ मिनिमम एरर ऑफ pi. It's a equation. I can take that equation in the next video. For this video I'm just going to cover up quantum numbers. So quantum numbers, when I write my address, first I'll write my room number, then I'll write my building, then I'll write Mumbai, and then I write Maharashtra. So room is the smallest place which tells me कि इधर है. Okay, and then we write a little bigger, and then we write a little bigger. But that's not the case with electrons. Electrons में हम उल्टा चालू करते हैं, सबसे बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा डिटेलिंग, फिर उससे छोटा डिटेलिंग, वैसा. ठीक है. So we have you all must be knowing there are four parts of writing the electron's address. There are four types of quantum numbers which are n, l, m and s. सबसे easy s है. S is spin quantum number. We say that if अभी there is this Pauli's exclusion principle. Okay, what Pauli's exclusion principle says that दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं हो सकता. ठीक है. Two electrons, suppose I say that two electrons are in Maharashtra, they are in Mumbai, they are in the same building, they are in the same room number, so they have to stay in different rooms inside that room. ठीक है. सेम हाउस है बट उसके अलग अलग रूम में रहेंगे. सो वन रूम विल हैव प्लस हाफ एंड द अदर रूम विल हैव माइनस हाफ. प्लस हाफ में दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, दे कांट स्टे टुगेदर. एटलीस्ट उनका रूम अलग अलग होना चाहिए अगर वो लोग एक घर में रह रहे हैं. ओके. So S is only of two types. It is plus half spin and minus half spin. The electrons का spin is opposite. Okay. So अगर उनका दो electrons का N सेम है, L सेम है, L सेम है, तो at least उनका S डिफरेंट होना चाहिए. अगर उनका S भी सेम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक ही है, दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. Okay. So S का हो गया. Now we will talk about N, L and M. So now so n is called as principal quantum number. Principal quantum number. Now when we draw a nucleus and then we draw orbit 1, orbit 2, orbit 3. Okay. Now there is actually a very different very much big difference between an orbit and an orbital and orbital or orbital whatever and shell. Okay, there is very a big difference. Actually shell and orbit can be same. K, L, M, N shell हम लोग बोलते हैं ना, वही तुम्हारा orbit है. First orbit, second orbit, third orbit. But when you say orbital, orbital is SPDF. There are four types of orbitals. Let me discuss the orbitals first. Orbitals are of four types. SPDF. What are orbitals? Orbitals is a three-dimensional space
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब आई कैन ऑब्वियसली आई कांट टेल कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है वो होता है तुम्हारा ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के साथ आता है नोड। नोड मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। ओके, सो देर आर टू थिंग्स, नोड्स एंड अपना ऑर्बिटल। सो ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, व्हेन यू से एस ऑर्बिटल इज गोल, ऐसा गोल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल ऐसा है। ओके, दिस इज, शुड आई मेक इट अ बिट स्मॉलर, या this is your s orbital, this is your p orbital, this is your d orbital, and your f orbital is, it's like a rosette. Okay, so sps. Now d में 5 टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स है, 5 टाइप ऑफ p ऑर्बिटल्स है। व्हेन यू फिल, इफ यू हैव सीन, s ऑर्बिटल का एक ही होता है डब्बा, p ऑर्बिटल के 3 डब्बे होते हैं। d, f इज नॉट इन योर सिलेबस। d के 5 डब्बे होते हैं, ठीक है। सो s इज s ओनली, बट वी हैव px, py एंड pz, ठीक है। व्हाट इज एक्स वाई जेड? दी एक्सिस, कौन से एक्सिस पे है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना। डी में वी हैव डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स, वेट आई हैव टू ड्रॉ इट ऑन, वी हैव डी के 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, we have dxy, dyz, dxz, dz square, dx square minus y square, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ऐसा वाला, ऐसा 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 ऐसा, डबल डम्बल, ठीक है। ये डी जेड स्क्वायर का अलग है, ये जेड एक्सिस पे ऐसा रहता है और उसके आजू बाजू में ये ऐसा डोनट जैसा शेप रहता है, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। नाउ यू सॉ हियर ना, यहाँ पे एक डब्बा रहता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू में ऑर्बिट्स होते हैं ना, तो सबसे पहला वाला जो है, शुड आई ड्रॉ, ये न्यूक्लियस है, तो मैं ये ऑर्बिट की बात कर रही हूँ, ये वाला सबसे पहला वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, ठीक है। ये ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिटल रहेंगे पता है? 1s, 1p नहीं होता है, फर्स्ट में p नहीं होता है। अब ये कैसे पता चला कि फर्स्ट में p नहीं होता है और सेकंड में d नहीं होता है? ये सब कैसे पता चलता है मैं बताती हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग फर्स्ट नहीं लेते हैं, हम लोग ना थर्ड लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड ऑर्बिट है ना, तो मैं ये लास्ट वाला ऑर्बिट ले रही हूँ, ठीक है, थर्ड वाला। तो इसमें कौन सा रहेगा मालूम है? 3s, 3p, 3d, ठीक है। सो 3s में 1 2 1 2, अरे अभी ये इफ यू नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन you will know how to fill up these electrons. I'll put a video on that also, how to fill up electrons, how to write an electronic configuration according to these orbitals as well, ठीक है। सो अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, इतना मैं भर देती हूँ। डी तक भरे क्या? ठीक है, डी तक भरते हैं, चलो। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, दिस इज पॉसिबल। अभी ये भी मैंने कैसे किया? how this is not possible, that is based on Aufbau principle, okay? So that also I will tell you why I corrected that, why that was not possible. And for now I want to focus only on your nomenclature, this giving quantum numbers. So I'm erasing this orbital and all that, then we can have space for writing the number, ठीक है।
नाउ आई एम चूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग ब्लू कर देंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन चुने? ये वाला चुनते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू सी आई हैव मेड वन इलेक्ट्रॉन लाइक दिस एंड वन इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, वैसा ऑपोजिट स्पिन वाला। ऐसा ऐसा बनाओगे गलत है, ऐसा ऐसा बनाओगे गलत है, ठीक है। देन ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने चुना। अब 3D का है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्बिट कौन सा है? 3, तो हमारा n इज इक्वल टू 3। n इज बेसिकली ऑर्बिट नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम लोगों ने सबसे बड़ा, पहली बात व्हेन वी से महाराष्ट्र, मैंने सबसे बड़ा वाला पार्ट बोल दिया है ना, महाराष्ट्र। तो वैसे ही मैंने सबसे बड़ा वाला ये बोल दिया कि भाई ये थर्ड में है, पर थर्ड में तो हम लोग के पास 3s है, 3p है, तो तुझे और 3d भी है, तो तुमको कैसे पता चला कि, तो अभी कैसे पता चलेगा कि s है कि p है कि d है? ये पता करने के लिए हम लोग लिखेंगे L इज इक्वल टू, L का वैल्यू SPDF का याद कर लो, F में F का जाने दो, चलो SPD का याद कर लो। SPD का वैल्यू है 0, 1 और 2। तो अगर तुमको बोलना है कि वो d ऑर्बिटल में है तो तुमको L इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आएगा m का वैल्यू आएगा -2। अब ये -2 कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। और s जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज -12। दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, इसका ये एड्रेस है। अब ये m का वैल्यू मैंने कैसे डिसाइड किया वो मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी हमको इतना मालूम है, वी हैव SPDF, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके, दिस इज 0, 1, 2, 3। S में तुमको पता है एक ही डब्बा था, P में 3 डब्बे थे, D में 5 डब्बे थे, और F में 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ। सो अभी हम लोग M क्यों लिखते हैं पता है? ये बताने के लिए कि डब्बा कौन सा है। सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ L। ये तुम्हारा L है ना, ये L है तुम्हारा। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ -L से लेके +L तक। अभी 0 है तो 0 का कुछ साइन होता है क्या? लेट्स राइट M। 0 का कोई साइन वाइन नहीं होता, तो 0 + 0 -0 कुछ नहीं होता है, m सीधा 0 आ जाएगा, क्योंकि s का एक ही डब्बा है। व्हेन आई से L इज इक्वल टू 0, तो मुझे ये नहीं पूछ सकते कि s ऑर्बिटल में कौन सा वाला डब्बा, ऐसा नहीं पूछ सकते, एक ही डब्बा है, उधर ही होगा, तो m इज इक्वल टू 0 आ जाता है सीधा। फिर p, अगर मैंने तुमको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है और p ऑर्बिटल में है, वो p ऑर्बिटल हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे वो 3p में है, तो तुम बोलोगे 3p में तो 3 डब्बे आते हैं ना, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, तो कौन सा वाला डब्बा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चालू करेंगे -L से लेके +L तक। -L मतलब L का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, कॉमा -1 से लेके +L विल बी +1, +1, -1 और +1 के बीच में क्या आता है? 0। सो दिस विल बी -1, दिस विल बी 0, दिस विल बी +1। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इधर है तो तुम क्या बोलोगे? L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हारा इधर है तो तुम बोलोगे L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू +1। मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या? L इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू +2। 2 कहाँ से आया? 3 ही डब्बे है, 3 का नंबरिंग हो चुका है, 2 कहाँ से आया? तो दिस इज रॉन्ग। सो हम लोग ये कैसे नंबरिंग कर रहे हैं? -L से लेके +L तक जा रहे हैं, करेक्ट। अभी D का देखते हैं। D के लिए हम लोग के पास है 2, तो हमको लेना है -L से लेके +L तक। तो -L क्या हो गया हमारा? -2,
वहाँ से लेके हमको कहाँ तक लिखना है, +2 तक। -2 के बाद पहले क्या आता है, -1, फिर आता है 0, फिर आता है +1, फिर आता है +2, है ना। हम लोग जब वो ग्राफ वाफ बनाते हैं तो तुम लोग पूरा y एक्सिस देखते हो, x एक्सिस देखते हो, तो उसमें ऐसे ही रहता है ना, -1, 0, +1, +2, +3, +4। अभी और पीछे जाओगे तो -y, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, ऐसा रहता है ना। तो वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे फिल कर दिया। तो तुमको कितने नंबर मिले, 1, 2, 3, 4, 5, और यही नंबर तुम लोग इस डब्बे को दोगे, ठीक है। सो व्हेन आई से इट इज़ L = 2 एंड M = +1, तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा, यहाँ होगा, इस डब्बे में, समझा। यही नंबर्स तुमको इधर देना है, ये -2, -1, 0, +1, +2। सो नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हम लोगों ने ये m वाला क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको क्यों लाया, इसको ये बताने के लिए लाया कि जब मैं बोलता हूँ कि, या फिर बोलती हूँ कि 3D है, तो D में कौन सा डब्बा है, ये बताने के लिए हम लोगों ने लाया m। s तो मैंने बता दिया है कैसे करते हैं। तो आई होप आई एम क्लियर हियर। सो हम लोग एक काम करते हैं, वैसे ही और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी ना हम लोग ये वाला इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसका एड्रेस लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसका एड्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल n = क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये थर्ड है, अभी भी थर्ड शेल ही है, 3p है ना, तो अभी तक थर्ड शेल है, ठीक है। p है, पर p y में है, p है तो सबसे पहले L = 1 आ गया, SPD is 0, 1, 2, SPDF is 0, 1, 2, 3, सो L = 1 आ गया। m का वैल्यू मुझे बताओ, m ये सेकंड डब्बे में है ना, PX PY PZ सेकंड डब्बे में है। m कहाँ से चालू होता है, -1 से लेके -1 से लेके +1 तक जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1, तो m = 0 हो जाएगा, ये m = 0 हो जाएगा, और s = +½ और उसके बाजू वाला जो है उसका ये सब तो सेम रहेगा, लेकिन s = -½ क्योंकि सेम एड्रेस वाले दो इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में एक साथ नहीं रहेंगे, कुछ तो अलग होना चाहिए। क्या अलग होता है, s अलग होता है। s has 2 values, +½ and -½ सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। ऐसे और एग्जाम्पल सॉल्व करो, कुछ डाउट्स रहेगा या फिर कुछ सजेशंस रहेगा, अगले टॉपिक्स का डिमांड रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना मुझे नहीं समझेगा कि तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, एंड देन it becomes a huge mess. So that's it for the day. Thank you, and I might be coming up with Aufbau principle. Okay, Aufbau principle and other rules like Hund's rule and Heisenberg's uncertainty principle. I'll explain everything in detail. If you want this, put it in the comments and then I'll come up with the video. Thank you.